7 November 2022, The Hindu Current Affair Gist. First highlight है the Commission for Air Quality Management CAQM on Sunday revoked its November 3 order that called for emergency measures such as a ban on the entry of trucks into Delhi and flying of non-BS6 diesel run light motor vehicles imposed under the Stage 6 of the Graded Response Action Plan. This was done as the air quality improved with favorable wind conditions. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो आपको CAQM के बारे में जान लेना है, कौन सी बॉडी है, किस एक्ट के अंदर बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टेज से बाहर स्टेज 6 क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जान लेना है कि जो ग्रेडिंग होती है एयर क्वालिटी वो क्या होती है, ठीक है, पुअर, वेरी पुअर, कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th पेज की हाईलाइट, द लास्ट हनी बीज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम इंडिया वाज एपिस इंडिका इन 1798। एक बात ध्यान रखना, अगर स्पीसीज़ का नाम आए एपिस आएगा, APIS आएगा स्टार्टिंग में, तो मतलब हनी बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एपिस इंडिका। सेकंड हाईलाइट, न्यू स्पीसीज ऑफ एंडेमिक हनी बी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स। द न्यू स्पीसीज हैज़ बीन नेम्ड एपिस करिंजोडियन एंड गिवन द कॉमन नेम इंडियन ब्लैक हनी बी, ठीक है। तो इंडियन ब्लैक हनी बी किसको बोलते हैं? एपिस KARINJODIAN, एपिस करिंजोडियन, ठीक है। तो हमें ये जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब भी एपिस आएगा तो इसका मतलब हनी बी के बारे में हो रहा है, या हनी बी की स्पीसीज़ है, ठीक है। एपिस मतलब कि हनी बी। अब नेक्स्ट 8th पेज पर हाईलाइट है, सेकंड हाईलाइट है, What did the Constituent Assembly say about the Uniform Civil Code? Article 44 contained in part number 4 of the Constitution says that the state shall endeavour to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. While there is no draft or model document yet for the Uniform Civil Code, the framers of the Constitution envisioned that it would be an uniform set of laws that would replace a distinct personal laws of each religion and with regard to the matters like marriage, divorce, adoption and inheritance. Part 4 of the Constitution outlines the directive principles of state policy which, while not enforceable or justiciable in a court of law, are fundamental to the country's governance. The clause on the Uniform Civil Code generated substantial debate in the Constituent Assembly about whether it should be included as a fundamental right or a directive principle. The matter has to be settled by vote with a majority of 5:4, wherein the subcommittee on the fundamental rights headed by Sardar Vallabhbhai Patel decided that securing a UCC was not within the scope of fundamental rights, ठीक है। तो सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स का हेड कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये जो लक्ष्मीकांत की बुक में भी दिया हुआ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट हाईलाइट है, but facing staunch opposition from the conservative quarters, it was amended, directed and watered down multiple times to finally be separated into 4 different acts: the Hindu Marriage Act, the Hindu Succession Act, the Hindu Majority and Guardianship Act, and the Hindu Adoptions and Maintenance Act in the 1950s, ठीक है। तो इनका ऑर्डर पता कर लें कब कौन सा आया था पहले। कई बार UPSC ऑर्डर पूछ लेती है, इंक्रीजिंग कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन बाद में आया, कौन पहले आया। थर्ड हाईलाइट है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ स्कॉलर फैज़न मुस्तफ़ा notes that while marriages amongst close relatives are prohibited by the Hindu Marriage Act of 1955, they are considered auspicious in the south of India. Even the Hindu Succession Act of 1956 made several compromises and could not make the daughter a corpora surner till 2005. Wives are still not corpora surners, nor do they have an equal share in inheritance. Similarly, there is still no uniform applicability when it comes to the Muslim personal law or the Shariat Act that was passed in the 1937. Fourth highlight, the Goa Civil Code was given by the Portuguese in 1867. It permits a certain form of polygamy for Hindus, while the Shariat Act for Muslims has not been extended to Goa, with Muslims of the state being governed by the Portuguese law as well as the Shastric Hindu law. The code gives certain concessions to Catholics as well. Catholics need not register their marriages, and Catholic priest can dissolve marriages performed in church.
ठीक है। तो फिफ्थ हाईलाइट आती है कि जो शाह बानो बेगम केस था 1985 का, ठीक है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जजमेंट ऑफ 1985, वेयर अ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमन डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड, द एपेक्स कोर्ट while deciding whether to give prevalence to the CRPC or the Muslim Personal Law called for the implementation of the UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। 10th हाईलाइट है 10th पेज पे। 10th पेज पे है कि सेंटर इशूज अलर्ट ऑन इलीगल स्टे ऑफ बांग्लादेशी नेशनलिस्ट इन द कंट्री। ठीक है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर आ गया कि वो इलीगली कैसे इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई इनको लेके आ रहा है और उनको आधार वगैरह कार्ड बन रहे हैं, पहचान पत्र बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आधार राशन कार्ड मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो ये अंदरूनी मिली भगत की वजह से ही हो रहा है। नहीं तो इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ज़्यादा अगर हम सोचें, पर्सपेक्टिव से सोचें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी प्रीलिम्स में इसकी कोई आउटपुट नहीं है। पेज नंबर 12, फर्स्ट हाईलाइट है द फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्नो लेपर्ड फ्रॉम द बालातल जोजिला region has renewed hopes for the elusive predator in the higher altitudes of Jammu and Kashmir and Ladakh। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बलातल जोजिला रीजन है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो बलातल जोजिला रीजन है ये कहाँ पे है। अब सेकंड है इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिड टू शोकेस द हेरिटेज ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ स्पेशली दोज ऑफ PVTs, particularly vulnerable tribal groups, the Anthropological Survey of India has recreated the huts of several communities at its different regional centers। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि PVTs जो हैं वो इंडिया में कितनी है। एट प्रेजेंट इंडिया में 75 PVTs हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स हैं ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप मेंस में भी डाल सकते हो। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शंस आ गए। ठीक है, GS मेन सिलेबस का पार्ट है, वल्नरेबल सेक्शंस है उसमें टॉपिक में दिया हुआ। ठीक है, तो PVTs के बारे में पढ़ लें, कभी ये एक्ट आया, इसके बारे में एक्ट है कि नहीं है, कभी ये इनैक्ट किया गया, कभी इनको प्रेफरेंस दी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता 14th। फर्स्ट हाईलाइट है कि रेस्क्यूअर्स ट्राइंग टू रिकवर द पैसेंजर प्लेन दैट क्रैश्ड इनटू द लेक विक्टोरिया इन तंजानिया ऑन संडे। ठीक है, तो प्लेन क्रैश हुआ लेक विक्टोरिया कहाँ पे, तंजानिया में। तो अफ्रीका का मैप, जोग्राफी के लिहाज से अफ्रीका का मैप निकाल लें। तंजानिया देखे कहाँ है, लेक विक्टोरिया के साथ। क्या सिर्फ तंजानिया में ही है, क्या और कोई कंट्री भी लगती है? तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तंजानिया कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न की कौन सी, या फिर इक्वेटर पास होती है कि नहीं होती है, कौन सी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं। सी के साथ लगता है, इंडियन ओशन के साथ लगता है, तंजानिया की नहीं लगता है, लैंड लॉक्ड है कि नहीं है। ठीक है, ये और उसके साथ की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एक बार नज़र मार लें। बहुत जोग्राफी के लिहाज से मैप में नज़र मार लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड हाईलाइट है COP27 पुट्स क्लाइमेट कंपनसेशन ऑन एजेंडा फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वोंट गारंटी कंपनसेशन और नेसेसरली एक्नॉलेज लाइबिलिटी बट इज़ इंटेंडेड टू लेड टू ए कंक्लूसिव डिसीजन नो लेटर दैन 2024। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।